तो हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं. दिस क्लास इज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन क्लास. ओके, सो दिस हैज nothing to do with the exact type of questions that will come in your examinations, the exact formulas that we'll be using or formulas we'll not be using. This class is more about how our derivative, why are derivatives so important, and why is calculus in general so, मतलब पूरी की पूरी calculus में इतना सारे derivatives क्यों हैं, मतलब डेरिवेटिव सब कहाँ यूज करने वाले हैं. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. नाउ सिंस यू हैव स्टडीड अ लिटिल बिट इन योर क्लासेस व्हिच इज लाइक क्लास 11th में कर चुके हो तुम काफी सारी चीजें, बोथ फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स. दैट इज द रीजन आई कैन राइट नाउ. लास्ट ईयर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था उसके एप्लीकेशंस. नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड इन फैक्ट वी विल बी डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन अ डिफरेंट चैप्टर, बट दे आर टोटली डिफरेंट. यहाँ ध्यान देंगे सब. It's not important अभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं. So what's important right now is to understand what derivatives means. So a little bit of knowledge that we already have is, अगर हमारे पास एक straight line, let's say अगर हमारे पास एक straight line, what is so special about a straight line? A straight line is a linear function, right? It is a linear पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकता है. और अगर ये लिनियर है, ठीक है, मतलब समथिंग फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस c, द m represents the slope, and the special thing about line, it has a constant slope, and that we can very much observe. And any time you think about a slope, just imagine the slope to be the, मतलब चढ़ाई, जैसे हम चढ़ाई की बात करते हैं, you can see कि यहाँ पे constant चढ़ाई है. There are no ups and downs. There's a constant चढ़ाई here. That's why straight line has a constant slope. And anytime we want to calculate the slope of a line, what we do is we take 2 points. The first point, let's say this is x1, y1. So let's call this x1, y1, and let's call this x2, y2. We have 2 points, x-axis, y-axis. To calculate the slope, you might remember कि formula क्या होता है, बताओ. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is also known as change in y, delta y by delta x. A lot of people confuse delta y by delta x as dy by dx. It is not the same. We will shortly discuss why and how it is different. Now let's talk about a simple graph, a different graph. Let's just say we have a different graph. So let me plot another graph for you. And this time I'm not drawing a line. I draw something like this. Okay. Now we can very much observe that this is a curve. Okay. Now this curve can have different slopes at different points. So if you notice at this particular point, what is the slope, and at this particular point, what is the slope? Another way to understand slope is basically, अगर मैं किसी curve का slope निकालना चाहता हूँ, तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो उससे टेंजेंट हो, एक ऐसी लाइन बनाऊं जो उससे टेंजेंट हो, और उसका क्या स्लोप होगा. तो अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन बनाऊं, so let me just make a line at this point. अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन बनाऊं और इस लाइन के स्लोप की बात करूं, इस पॉइंट से टेंजेंट है लाइन, ओके, और इसकी बात करूं मैं कंपेयर टू अनदर लाइन व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस पर्टिकुलर लाइन जो कि दूसरे पॉइंट से टेंजेंट है, this tangent line will give us the slope. So the first one, this particular one is, let's say this is 30 degree, or let's say this is 60 degree, and let's say this angle is 30 degree. So the slope can also be given by the tan of the angle it makes with the x-axis, which is tan 30, which gives 1 by root 3, and tan 60, which gives root 3. So we can very much see that यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे स्लोप, अच्छा सिंपली सोचो कि अगर मैं तुम इस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें कम मेहनत लगेगी या ज्यादा मेहनत लगेगी. पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो. अरे शुरू में ज्यादा मेहनत लगेगी, धीरे धीरे तो फ्लैटर होता जा रहा है. कैसी बात कर रहे हो. अगर इस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे फ्लैटर होता जा रहा है, तो it will be easier for you to climb this particular mountain. So that is what slope is all about. It is getting flatter and flatter. So which means slope is
decreasing. Slope is decreasing. Now, how do we calculate the slope at a particular point is a rather interesting thing. And this is where we introduce derivatives. So let's understand how do we do that. Let's make another graph. And this time, with this graph, let's just say we have, oh, just a second. Now let's come to the interesting part. Let's say we have a graph like this. Now you might have seen this graph a lot in especially economics. This is convex to the origin. This is convex to the origin. Convex to the origin मतलब समझते हो ना? Bulged out towards the origin. ठीक है? Now अगर हम इसकी slope निकालने की कोशिश करें, let's say at this particular point. Let's say I want to calculate the slope at this particular point. Let's see what happens. So at this particular point, if we work to calculate the slope, so power. Okay. Now the way to calculate the slope is कि मुझे पता है इस particular point पे slope क्या होगी, इस line की जो slope है उसके equal होगी, है ना? इस line की जो slope है उसके equal होगी. तो इस line पे अगर हम 2 points ले ले, let's say हम इस पे एक point लेते हैं x, तो यहाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक point लेता हूँ x, ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अच्छा समझाता हूँ. मैं इस पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है. एक पॉइंट में लेता हूँ ये वाला पॉइंट, ये वैल्यू क्या है, x है. ये वैल्यू क्या है, y या फिर f ऑफ x, है ना? ये y फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये f ऑफ x है. और यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से थोड़ी दूर इससे, सो लेट्स से दिस वैल्यू ऊपर लेता हूँ जिससे तो मैं x प्लस h कर पाऊँ ना, माइनस हो जाएगा. सो ये वाला पॉइंट मेरा x है. x पे मेरे पास फंक्शन की एक वैल्यू है, सो वी हैव x कॉमा दिस पॉइंट इज x कॉमा f ऑफ x. एंड मैं इससे थोड़ी सी और दूर, लेट्स से दिस पॉइंट वाज, अगर मैं इसे नीचे ट्रेस करूं, सो दिस वाज x. अब मैं एक डिस्टेंस h दूर, एक डिस्टेंस h दूर एक पॉइंट लू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस h, है ना? तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस h. ये पॉइंट कहाँ आएगा? अच्छा नोटिस करो, ये पॉइंट फंक्शन पे प्लॉट कर रहा हूँ मैं, लाइन पे नहीं कर रहा. आई वांट, लेकिन मेरे पास लाइन की इक्वेशन नहीं है, मेरे पास इक्वेशन किसकी है, फंक्शन की है. मेरे पास इक्वेशन किसकी है, फंक्शन की है. आई वांट कि इसकी स्लोप लाइन के इक्वल आए, लेकिन मेरे पास फंक्शन की वैल्यू किसकी है, फंक्शन की वैल्यू है. तो दिस पॉइंट विल बी, ये होगा x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच. अच्छा, नाउ मुझे पता है 2 पॉइंट फॉर्मूले से मैं स्लोप कैसे निकालता हूँ. तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेल y बाय डेल x विच इज इक्वल्स टू चेंज इन y. तो y क्या है, f ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ पहले, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. नाउ y2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x प्लस h. y1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है, x प्लस h. x1 की वैल्यू x, x और h कट गए. नाउ वी हैव द फॉर्मूला f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. नाउ नोटिस समथिंग कि ये जो कर्व है, अब मैं इसका थोड़ा सा अगर जूम्ड इन वर्जन दिखाऊं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो लेट्स जस्ट जूम दिस इन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, या इसके अराउंड क्या हो रहा है, so let's just see. इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड what is happening is the curve is coming very close to the line. So we have a line and we have a curve, and ये दोनों क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं. Now the closer I take 2 points on this, अगर ये मेरा जो पहला पॉइंट है, पॉइंट ए बी, मैं जितना इन्हें पास लाता जाऊंगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेरी क्या आएगी, मेरी उतनी ज्यादा एक्यूरेट स्लोप आएगी, बिकॉज आई वांट द स्लोप टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन. सो व्हाट आई वुड डू इज, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस h का है. तो इफ आई यूज लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, मतलब डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो चुका है,
एंड उस पे हम फॉर्मूला लगाए, this gives you as the value of slope, and this is what is known as the derivative or dy by dx. This is the meaning of dy by dx. So ये होती है हमारी डेरिवेटिव. What is we are doing is, क्योंकि कर्व्स के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्मूले से स्लोप नहीं निकाल सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर्व को एक लाइन के इक्वल करने के उसके 2 पॉइंट ही ले रहे हैं, बट वो 2 पॉइंट इतने क्लोज ले रहे हैं हम कर्व पे कि वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली क्लोज हो जाए और वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल आ जाए, which we can calculate. So this is the technically derivative, this is the derivation for derivatives. ठीक है, this is the derivation for derivatives की how does this formula, and this is calculation of derivatives through first principle. This is calculation of derivatives through first principle. Now remember, every question that we will be solving from now on, every single one of them can be solved through first principle. It's just that कि वो बहुत tedious हो जाएगा, so इसलिए हम कुछ common results use करते हैं and उन्हें use करके हम derivative निकालते हैं. So eventually आप क्यों भूल जाते हो कि first principle क्या होता है, because हम इसे बाद में use नहीं करते, हम common results use करते हैं and उसी से हम हमेशा आंसर निकालते हैं. Now one of the things I'd like you to do is कि पहले ये प्लॉट करो, then हम थोड़ी सी बात करेंगे continuity की and differentiability की, मतलब उन दोनों का मतलब क्या होता है and when is something continuous, non-continuous, differentiable, non-differentiable. Plot all three graphs, plot everything I have drawn here. Just on a notebook, this is an introduction class. Okay, so let's now understand limits. Sir, पहले आपने derivatives करा दिए, अब limits क्यों करा रहे हो? I mean, it really does not matter since तुमने already ये सब चीजें कर चुके हो, तो it's just मतलब connection of stories. In fact, you should be पहले taught limits, then eventually continuity, then differentiability, but तुम्हें already तीनों चीजें आती है, so it's more like a refresher to you rather than concept. Now I draw a random graph, ठीक है, and मैं limit की बात करता हूँ. इस पॉइंट पे इसकी लिमिट क्या है? When I talk about the limit, what I'm asking is कि ये राइट हैंड साइड से क्या अप्रोच करता है और ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या अप्रोच करता है. मतलब जब x की वैल्यू यहां से x माइनस x माइनस a and this is x equal to a और देन से ऊपर x प्लस a, इन दोनों डायरेक्शन से जब ये टुवर्ड्स दैट पॉइंट आ रहा है, तब इसकी वैल्यू किसे टेंड कर रही है. नाउ रिमेंबर व्हेन आई से व्हाट इट वैल्यू टेंड्स एंड व्हाट इट्स वैल्यू एग्जैक्टली आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वैल्यू यहां से एंड यहां से इस वैल्यू को अप्रोच कर रही है. इन दिस फंक्शन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि यहाँ पे सिंस एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब एक कंटिन्यूअस की बात करेंगे अभी, वैसे इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही होगी. इट इज प्रीटी डायरेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? नाउ द वैल्यू अप्रोचिंग फ्रॉम द left hand side, the value approaching from the left hand side is known as the left hand limit, and it is represented by limit x tends to a negative f of x. The value approaching from the right hand side of the limit is known as right hand limit, and this is limit x tends to a positive f of x, and limit will only and only exist if and LHL is equals to RHL. We say limit exists. ठीक है, तो ये हमने सब कुछ डिस्कस करा था क्लास 11th में. ये बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये वाला हमारा फंक्शन f of x. Now when I make a continuous and smooth curve, it's very very obvious कि क्या हो रहा है यहाँ पे. Let's make something that is a little let's say broken down and then discuss about the limits. So this is pretty obvious in a straight diagram, but it gets a little problematic when I draw diagrams which are broken. So for example, if I draw this particular diagram, let's say we have something like this. अच्छा, मैं तुम्हें फंक्शन लिख रहा हूँ साइड में. You don't have to plot it. I'll just plot it and show you. But I'm still anyway gonna do this for you. F of x is equals to, let me make a piecewise function, mod x upon x when x is less than 0. Okay, then we have
when x lies in the interval 0 to 3, this function will be equal to x. Okay, and when x is greater than 3, this function is equal to 3. Now, मुझे नहीं पता तुम में से कितने बच्चे प्लॉट कर पाएंगे. It's not that difficult if you think about it, but I'm just going to plot it straight away and just show you something. So let me just do something else. I'm going to use here open brackets. Okay. So this function will be -1 when x is less than 0. It will stay -1 up till 0. 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है. 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है. This will stay -1. Because if you think about it, this is f of x is equals to x less than 0 मतलब -x हो जाएगा divide by x, है ना. तो ये क्या आ जाएगा -1. और x when x is in the interval 0 to 3 and then 3 when x is greater than 3. So अब 0 to 3 में क्या हो रहा है, ये equal to x है, मतलब y equal to x प्लॉट कर रहे हैं हम 0 to 3 में. तो 0 to 3 में अगेन नॉट इंक्लूडिंग 0 to 3 में हम प्लॉट करेंगे समथिंग लाइक दिस. This is from 0 to 1 2 3. Then 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर we have continuously 3. So this is 3. This is the graph which I just made and just plotted. So it's an interesting how we can plot a lot of graphs, a lot of piecewise graph. But let's just understand the meaning of limit from this particular graph. Now इसकी बात करते हैं, ठीक है. This particular value, अगर मैं पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 3 की वैल्यू क्या है. लिमिट x टेंड्स टू 3 की वैल्यू होती है, पहले हम टेस्ट करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है. दिस इज आवर f of x. So let's calculate limit x tends to 3 negative f of x. Okay, 3 negative f of x मतलब अगर मैं नेगेटिव साइड से x से कम वाली साइड से अप्रोच करता हूं LHL, तो ये वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है. देखो ये वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है, 3 को अप्रोच कर रही है. So this is equals to 3. अगर लिमिट x tends to 3 पॉजिटिव f of x लूं, मैं पॉजिटिव साइड से किसे अप्रोच कर रही है, पॉजिटिव साइड से भी ये 3 को अप्रोच कर रही है. सिंस ये दोनों 3 को अप्रोच कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट. नोटिस कि यहाँ पे एग्जैक्टली एट 3 f of 3 क्या है, f of 3 क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. देयर इज नो वैल्यू, मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड इन आवर फंक्शन. f of 3 is not defined. Even though f of 3 is not defined, this does not mean that हमारे पास लिमिट की वैल्यू नहीं है. हमारे पास लिमिट की वैल्यू है लेकिन f of 3 डिफाइंड नहीं है. So this is a very interesting and important concept कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है without the function taking any value at that point. But लिमिट एग्जिस्ट करने से हम आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे. तो कॉन्टिन्यूटी के लिए for continuous what you need is limit x tends to a negative should be equal to limit x tends to a positive, which means कि ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट्स एंड देन उसके बाद इक्वल टू क्या होना चाहिए, f of a. मतलब ये f of a के भी इक्वल होना चाहिए. उस फंक्शन की जो उस पॉइंट पे वैल्यू है दैट शुड बी सेम एज जो लिमिट अप्रोच कर रही है. व्हेन वुड दिस नॉट बी द केस, कि सर ऐसा कब होगा, जैसे इसमें तो नॉट डिफाइंड है, क्या ऐसा हो सकता है डिफाइंड भी हो लेकिन तब भी अप्रोच ना कर रही हो. हाँ हो सकता है. थिंक ऑफ दिस, लेट्स से एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, और ये -3 पे क्या करता है, ये से फंक्शन को लिखूं कैसे, मैं ऐसे लिखता हूं f of x is equals to let's say this value is 2 when x is not equal to 3 and let's say 4 when x is equal to 3. So all throughout the picture this particular graph stays at 2, but exactly at -3 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है. So what will happen if we calculate the limit, जैसे जैसे हम इसके पास आते जा रहे हैं, ये वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है. So limit x tends to -3 negative f of x is also to limit x tends to -3 positive f of x is also 2, but f of -3 is
4। सिंस ये तीनों इक्वल नहीं है, ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस। बट अगर हमारे पास ग्राफ है तो डिसकंटिन्यूअस बताने का बड़ा आसान तरीका क्या है कि तुम ये देखो कि क्या तुम बिना पेन उठाए वो ग्राफ बना सकते हो। दैट इज कॉन्टिन्यूटी। तो क्या मैं ये वाला ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकता हूँ? नहीं। ऊपर एक डॉट लगाना पड़ेगा मुझे। क्या मैं ये वाला ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकता हूँ? नहीं। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कम से कम उसके पूरे डोमेन में नहीं। पूरे डोमेन में मतलब पूरी फंक्शन नहीं है। हाँ, किसी दो इंटरवल के बीच में कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है, क्योंकि इसमें पेन उठाना नहीं पड़ रहा मुझे इन दोनों इंटरवल में। सो सम फंक्शंस even though not continuous throughout can be continuous in some intervals and it is important to understand that. लेकिन अगर हम ऊपर वाले ग्राफ की बात करें, क्या है कंटिन्यूअस थ्रू आउट है? yes, this is continuous throughout. ठीक है, this is continuous throughout. So this is the meaning of continuity and existence of limit. Remember, अगर limit की value infinity आती है तो limit does not exist. Limit की value अगर infinity आती है, सर limit की value infinity आएगी कब? Let's just plot for this. f of x is equals to 1 divided by mod x. 1 divided by mod x को प्लॉट करते हैं, तो 1 divided by mod x को अगर हम प्लॉट करूंगा, नहीं, किसी को पता है 1 by mod x कैसा दिखता है? हाँ, this is x, this is y, and this will be something like this. This is your graph for f of x is equals to 1 upon mod x. Now, if I ask you the value of limit x tends to 0 f of x. Okay, now what you'll do is limit x tends to 0 negative f of x. इसकी वैल्यू क्या है? जब हम 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले हैं, 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले, तब ये देखो ये वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी. Similarly, limit x tends to 0 positive f of x. This is equal to again 0 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाते तब भी वैल्यू किसको टेंड कर रही है? इंफिनिटी को. ये दोनों वैल्यू सेम है, सो हम बोलेंगे लिमिट x tends to 0 f of x is equals to infinity. Does that mean limit exists? No. No. लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब उसकी वैल्यू क्या हो? एक फाइनाइट वैल्यू. So this still means the limit does not exist. Remember, infinity is not a finite number. बस हम इंफिनिटी लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज इक्वल टू इंफिनिटी बट इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट भी और इनफाइनाइट भी ना है? हाँ, अगर तुम f of x इज इक्वल्स टू, लेट्स से तुम f of x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लॉट करते हो, इनवर्स दिस इज द, मतलब 1 अपॉन मैं वो कर देता हूँ, ऐसा करूं कि ओवरलैप ना करे, क्या करूं? 2 + 1 अपॉन x कर दूं, शिफ्ट शिफ्ट करने के लिए बस, क्योंकि ये बना पाऊंगा ना फिर मैं, समझ रहे हो ना, मतलब एसिम्पटोट 2 पे बन जाएगा. तो आई एम नॉट श्योर तुम समझे नहीं समझे, बट ये बेसिकली 2 से स्टार्टिंग है इसकी. बेसिकली ये वाले ग्राफ से इसका ग्राफ एक साइड से ऐसा बनेगा, ठीक है, और दूसरी साइड से ऐसा बनेगा. नाउ इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू, जिसको आता होगा आंसर देना बस, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है इसका आंसर क्या होगा. हाँ, व्हाइट वाले, ये रहा ना, ये वाला f of x, इस वाले f of x के लिए, व्हाइट वाले ग्राफ के लिए. इस जिसको आता है जस्ट शो ऑफ हैंड्स, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, इसकी वैल्यू क्या होगी. आयुष्मान ने हैंड रेस करा है, नील, शिका, यशिका बोलो, बोलो बोलो. हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज भी बोल सकते हो, इंफिनिटी बोल सकते हो, जो भी हो. इंफिनिटी. आयुष्मान आप बोलो. सर जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई क्या? की वैल्यू, दोबारा बोलो क्या? जो भी उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू है, वाई इक्वल टू 1 और 2, whichever it is.
बता ना, मुझे वैल्यू तो बता। 2. 2। डज नॉट एग्जिस्ट। समझ के देखते हैं, चलो। चलो डिस्कस करते हैं नाउ। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2+1/x की अगर मैं बात करूं, 2+1/x, ठीक है। व्हेन आई से 2+1/x, कैन यू, मतलब I don't think this is the plot for 2+1/x. Is this the plot for 2+1/x? Y minus 2, ये ग्राफ सही है? Y is equals to 2+1/2. No, this graph is incorrect. This graph is incorrect. Yeah, this graph is incorrect. This graph should be like this. दुखी मत हो। This is the graph we are looking for. This is the correct graph for y is equals to, दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू। अब तुम मुझे बताओ, अब क्या है आंसर? अब तो ऑब्वियसली, अब तो प्रीटी ऑब्वियस कि यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव पूछूं, जीरो नेगेटिव इज जीरो से जब छोटी हो वैल्यू तब कहां जा रही है वाइट वाला ग्राफ? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। बट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, तब ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम सीधा बोलेंगे, इन्फिनिटी के इक्वल भी नहीं आया, हम सीधा बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। what I made at that time was the graph, मतलब जो मैंने ग्राफ बनाया था इससे पहले, वो पता किसका था? वो था y, बता सकता है कोई? 1/x-2, y equal to 1/x-2 का ग्राफ था। That is the graph of 1/x-2, and then that, if you think about it, f of x अगर equal to 1/x-2 है, then indeed f of 0 क्या होगा? या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगी? -1/2। दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। दैट इज व्हाट विल -1/2, एंड दैट इज समथिंग जो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि हमने जो पहला, मतलब मैं नीचे छोटा सा दोबारा बनाता हूँ, तुम्हें याद है कि मैंने क्या करा था। अगेन दिस वाज नॉट इंटेंशनल, आई जस्ट मेड द रॉन्ग ग्राफ। तो ऐसा लग रहा है सब जबरदस्ती फंसा रहे, नो आई जस्ट मेड द रॉन्ग ग्राफ, दिस वाज नॉट इंटेंशनल। बट asymptote क्या है इसका? asymptote है इसका x is equals to 2. X is equals to 2 is the asymptote, and then we have a graph like this. And that is the reason कि जब हमने बात करी कि सर x equal to 0 पे इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या होगी? -1/2. You can see this is intersecting at -1/2. This point will be -1/2. ये डिफाइन कहाँ पे नहीं होगा? When मतलब ये कौन से पे does not exist होगा? This will be limit x tends to 2, x tends to 2 पे f of x will be does not exist. 1/2 - x का अगर हम ग्राफ बनाए तो basically it will be this -x minus this will be the graph probably, and this will be the graph क्योंकि वो -x हो गया तो माइनस कॉमन ले लिया, इसका इनवर्स, that will be the graph. Yes. Okay, coming back to our point, now you understand what limit की existence and does not exist का मतलब होता है, what is the meaning of continuity. Now I want you to think about differentiability. Now let me tell you what differentiability means. We have time. Let's talk about differentiability. I will send you this PDF, you can note everything down. Just make sure you understand right now. जितने इस क्लास में आंसर दे पाओगे उतना अच्छे से समझना कि तुम्हें डेरिवेटिव समझ आ चुकी है और तुम जिंदगी में यूज कर पाओगे, वरना तुम कभी यूज नहीं कर पाओगे। क्या सर यूज करना भी पड़ता है? डिपेंड्स। इफ यू आर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट जॉब व्हिच रिक्वायर्स like let's say something like HR or something, you will never require this. If you're going into research field, if you're going into finance, if you're going into economics, if you're going into
any मतलब like engineering of a lot of sorts. I mean, a lot of sorts. For example, mechanical engineering, for example, a little bit of chemistry even has derivatives. The chemistry even has derivatives. You might not know it right now, but even chemistry has derivatives. It's fun how much derivatives are used. Anyways, now let's talk about differentiability. Differentiability का मतलब होता है अगर मैं एक पॉइंट लूं और उसके राइट हैंड साइड से एंड लेफ्ट हैंड साइड से सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी की तरह ही हम राइट हैंड साइड से एंड लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से क्या करें, इस बार हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इस बार हम फंक्शन का स्लोप निकालेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड से स्लोप और लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप बराबर आती है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। सो what it means is for function to be differentiable, let's call this right hand derivative, let's call this left hand derivative। और हम क्या करने वाले हैं, लिमिट h, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड के लिए x माइनस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h। you might think कि सर उसमें तो हम वन a पॉजिटिव a नेगेटिव ले रहे थे, यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? ना ना ना, यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव नहीं ले रहे, यहाँ पे हम ले रहे फंक्शन की वैल्यू h कम हो और h ज्यादा हो। लेकिन h को क्या रखना है, हमें h को इनफाइनाइटली स्मॉल ही रखना है। डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम अगर इस लाइन की दोनों साइड से स्लोप निकालेंगे और वो स्लोप सेम वैल्यू के इक्वल आती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या है, डिफरेंशिएबल। क्या डिनोमिनेटर में माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में एच तो है ना। अच्छा माइनस एच कह रहा है, नहीं यार थिंग इज ना कि अगर हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं माइनस अगर मैं पॉइंट्स ले लूं, इसको लेते हैं x और f ऑफ x, ठीक है। अब h पीछे जाते हैं, इससे h पीछे जाएंगे तो ये क्या आएगा, f ऑफ x माइनस h और x माइनस h, करेक्ट। अगर h आगे जाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस h एंड f ऑफ x प्लस h। 2 पॉइंट फॉर्मूले से करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, f ऑफ x माइनस h y2 माइनस y1 डिवाइड बाय f ऑफ x डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू क्या है, x, अच्छा माइनस h माइनस x, तो यस दिस विल बी माइनस h एंड देन उसका तो हमें पता ही हो, तो हम डिराइव कर ही चुके हैं प्लस वन, हाँ ठीक, तो फिर माइनस h होगा, तो फिर माइनस h होगा। या फिर माइनस लिखने की जगह तुम f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h कर सकते हो, बट या यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और बाय द वे माइनस, या इट्स makes sense, yeah, makes sense। now I want you to think of a graph, I want you to think of a graph first of all which is discontinuous, तो डिफरेंशिएबल हो सकता है कब, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, लेट्स से मेरे पास ऐसा फंक्शन है, बोलो आयुष्मान। tan इनवर्स x। मैं तो तुम्हें एक सिंपल फंक्शन दे रहा हूँ, मान लो ये डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट होगा, सोचो सोचो, क्या नहीं हो सकता, मतलब क्यों? क्वेश्चन है सिंपल, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हो सकता? डिफरेंशिएबल हो सकता ही नहीं हो सकता, हाउ मेनी से हो सकता है, कौन कौन कहता है हो सकता है डिफरेंशिएबल, मतलब बाय डिफॉल्ट जो जो नहीं उठाएगा मैं मानूंगा कि वो कह रहा है नहीं हो सकता, मतलब देयर इज वन ऑफ द टू ऑप्शन। कौन कौन कहता है डिफरेंशिएट हो सकता है, इशिका कह रही है, सोनाक्षी कह रही है, कोई नहीं कह रहा, आयुष अमन भी कह रहा है, अच्छा, और आई एम होपिंग कि और सब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। सो अगर आप कह रहे हो नहीं हो सकता देन व्हाई, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं
तो मुझे तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन की स्लोप बराबर दिख रही है, हाँ ना? कॉन्ट्रडिक्ट मी कि क्यों गलत हूं, अगर गलत हूं। अबे जान ले, स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तुम्हें तुम्हें ऑप्शन ही ना मिले कुछ बोलने का। अब तुम मुझे बताना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। I'll make you this particular graph. इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली एक जगह पे गोला लगा दूंगा। लेट्स कॉल दिस पॉइंट 2, ठीक है? सो मैंने 2 पे गोला लगा दिया, मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। पेन को उठाना पड़ा हमें वहां पे, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्यों नहीं है, बोलो। इफ यू आर सेइंग इट इज नॉट, either you are saying कि हाँ डिफरेंशिएबल है, or you are saying not, then why not? Because what we discussed right now is कि इन दोनों की दोनों साइड से क्या होनी चाहिए, स्लोप। दोनों से जो अप्रोचिंग स्लोप है वो सेम होनी चाहिए। इज द अप्रोचिंग स्लोप सेम? इज द अप्रोचिंग स्लोप सेम? Now let me ask you a different question and you might have figured out the answer. You might again, you might. क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? मतलब बट मैं समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट वैल्यू टेंड ना करना, इट्स मोर लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ स्लोप कैलकुलेशन। let's say I give you the point 2,3, 2,3 की स्लोप बताओ। क्या मतलब 2,3 की स्लोप क्या है? पॉइंट की स्लोप क्या होती है? देयर इज नो स्लोप ऑफ अ पॉइंट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जब हम इनफाइनाइटली क्लोज जा रहे हैं उस पॉइंट के, हमें 2 पॉइंट चाहिए। डिफरेंस कंटिन्यूटी के लिए हमें, फंक्शन की वैल्यू के लिए हमें 2 पॉइंट नहीं चाहिए था, 1 पॉइंट चाहिए था, तो हम 1 पॉइंट तो निकाल पा रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो हम जब उससे इनफाइनाइटली क्लोज जा रहे हैं, उस पॉइंट से हम क्या निकाल, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना? फंक्शन में क्या है, देखो यहाँ पे हमारी हमारी रीजन क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं स्लोप निकाल कैसे रहा हूं? मैं स्लोप्स नहीं निकाल सकता। इवन दो स्ट्रेट लाइन, इट सीम्स कि इन दोनों की स्लोप क्या है, इक्वल है, बट मैं उसकी स्लोप निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दूसरा पॉइंट ही नहीं है, मुझे वो पॉइंट चाहिए। सो दैट इज द रीजन यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ अ ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूअस। का मतलब होगा it is non-differentiable. Now, if it is continuous, it can be differentiable or non-differentiable. So, give me an example of a continuous function. Just raise your hands, which is non-differentiable. बोलो। डोमेन की बात है ना, अगेन मैंने तुम्हें क्या बोला, समथिंग बीइंग डिसकंटिन्यूअस थ्रू आउट एंड समथिंग बीइंग डिसकंटिन्यूअस इन अ पर्टिकुलर डोमेन इज डिफरेंट थिंग। सो जिस डोमेन में वो कंटिन्यूअस है उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस है, और डिफरेंशिएशन में हम लिखेंगे भी रेस्ट्रिक्शंस। प्रिंसिपल वैल्यूज है, क्यों है प्रिंसिपल वैल्यूज? डिफरेंशिएट भी इसी तो इंटरवल में करो, उससे आगे पीछे नहीं कर सकते, उतने में ही कर सकते। Answer me this question. Give me an example. Just raise your hands. A function that is continuous, and you can just draw it out. You don't have to write down a function. You can just draw out a function जो continuous हो पर differentiable ना हो। मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें किसी एक पॉइंट पे स्लोप तो सेम ही हो हर जगह, मतलब सॉरी, हो तो continuous, बट एक पॉइंट पे स्लोप दो अलग अलग आ रही हो, एक पॉइंट पे दो स्लोप आ रही हो। आयुष्मान, तू मुझे इमेज भेज सकता है आयुष्मान? constant functions. कांस्टेंट फंक्शन नो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। इधर आके देखा क्या? हाँ हाँ, नहीं तो फंक्शन ही नहीं है। हाँ, ये तो फंक्शन नहीं है ना। mod x तो हाँ इज अ कन्वेंशनल एग्जांपल। Why is mod x a conventional example? You understand? So let me teach you again, and this is something we discussed in 11th. Any graph which has spikes, you understand spikes? Spikes समझते हो? मतलब अभी तक जितने भी ग्राफ बना रहे थे हम खुशी खुशी स्मूथ स्मूथ बना रहे थे, ठीक है?
मेरे को मन करा स्टॉक मार्केट जैसा ग्राफ बनाने का, ऐसा 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 ऐसा। ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ऑल सच पॉइंट जहां पे स्पाइक्स होते हैं या फिर जहां पे जैसे कहते हैं ना, मतलब किंग्स होते हैं, काइंड ऑफ लाइक किंग्स, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। एंड यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, mod x is the best example to explain this, because and now तुम्हें डिफरेंशिएशन भी आती है तो अब समझाना और आसान है। Let's say again I plot a mod x graph. Mod x is this, है ना। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर लाइन, mod x कैसे लिखते हैं हम, f of x is equals to minus x when x is less than 0, x when x is greater than equal to 0, यही होता है हमारा फंक्शन। अब मैं निकालता हूं दोनों साइड से डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो ऊपर क्या है, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स, एक है y इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करते हैं इसे, यहाँ पे क्या है dy by dx -1, यहाँ पे क्या है dy by dx +1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो वी कैन हैव फंक्शंस व्हिच आर नॉन डिफरेंशिएबल बट आर continuous, and this is what your first part of your course is, to find out functions, to see if the functions are continuous, to see if the functions are differentiable. If you remember these formulas and if you remember the graphical approach, you can always understand how it works and how it does not work. So this is what we say when we say that koi cheez differentiable hai. This is what it means when we say something is continuous and something's limit exists, then differentiation ka formula, and this is your general introduction of the chapter. Now, for everyone that is a commerce student, I would be sending you a recording which is of applied maths. Now there is, I mean, I am restricted because this is a general maths class. I cannot discuss things which are specifically related to commerce, but that introductory recording is very, very good for students of commerce, because वो तुम्हें ये सिखाएगा कि हम कैसे derivatives को like marginal cost curve में use करते हैं, IC में use करते हैं, total cost में use करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। It's a very interesting recording. You should definitely see it. It has an introduction of this as well, but this was from the point of view of general mathematics. So इसलिए मैंने आपको लिमिट्स भी इंट्रोड्यूस करा, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस करा, वो सब आपके कोर्स में, उनके कोर्स में सिर्फ डिफरेंशिएशन है, तो थोड़ा जरूर देखना। मैं आज ही भेज दूंगा, इनफैक्ट अभी भेज दूंगा, जरूर देखना, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फर्स्ट कंटिन्यूटी एंड इवेंचुअली डिफरेंशियल। एक्स्ट्रा क्लासेस कब?